ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے سینٹ جہاں پر اجلاس جاری ہے۔ علی محمد خان کون نہیں ہے، وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی علی محمد خان کو کون دیں؟ جی اب آپ لوگ تشریف رکھیں پلیز، شہری رحمان صاحبہ تشریف رکھیں۔ اب جو معزز اراکین اس سائڈ پہ ہیں جو ہاتھ گئے اس بل کے حق میں وہ کھڑے ہو جائیں، چلیں جی کاؤنٹ کریں، تشریف رکھیں شہری رحمان صاحبہ، باقی پھر یہ شروع ہو جائیں گے پلیز۔ اب آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب ووٹ تو نہیں دے رہے، بیٹھ جائیں نا جی۔ اب یہ بھی مجھے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جی، ہاؤس ہے۔ سینیٹر ہدایت صاحب دھیان سے پلیز۔ جلدی بتائیں جی، آئیں کاؤنٹ بتائیں جی پلیز۔ اس دفعہ جو کاؤنٹ ہوئی جی، اپوزیشن 42، ٹریجری 43۔ دیکھ لیں، گنے اپنے گنے نا جی۔ The bill stands passed. The motion adopted and the bill stands passed. امینڈمنٹ ریجیکٹ کر دی اس نے، منسٹر صاحب نے، ہاؤس نے ریجیکٹ کر دی، ہاؤس نے ریجیکٹ کر دی آپ کی۔ آپ اس وقت شور میں تھے جناب جی۔ اب 42 اپنے گن لیں، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، منڈے کو بول لیں گے جی۔ کوئی پریزیڈنشل سپیچ پہ بولنا چاہتا ہے؟ نو۔ امینڈمنٹ ریجیکٹ ہو چکی ہیں آپ کی۔ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، خود اس وقت سن نہیں رہے تھے۔ The House stands adjourned to meet again on Monday, کیا ڈیٹ بنتا ہے جی منڈے؟ The 31st January 2022 at 3:30 PM۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے بل پیش کرنے کی تحریک کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا گیا اور وہ بل جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے زیر صدارت اجلاس ہوا اور اسٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ میں منظور ہو چکا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ وقاص بتائیے گا، بل منظور ہو چکا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی وزیر خزانہ شوکت ترین نے اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل سینٹ آف پاکستان میں پیش کیا ہے اور اس کے اوپر اپوزیشن اور جو حکومتی اراکین ہیں ان کی گنتی کرائی گئی ہے۔ 2 بار گنتی کرائی گئی ہے۔ پہلی بار جب گنتی کرائی گئی تو حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کے تعداد جو ہے وہ برابر رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے 43 اراکین ایوان میں موجود تھے، جبکہ اپوزیشن کے بھی 43 اراکین موجود تھے۔ جبکہ دوبارہ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ ایوان میں ان کے اراکین زیادہ ہیں اور دوبارہ گنتی کرائی جائے، اور جب دوبارہ گنتی ہوئی تو اس وقت اپوزیشن کے 42 اراکین ایوان میں موجود تھے، جبکہ حکومت کے 43 اراکین ایوان میں موجود تھے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے اسٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل ہے اس کو منظوری دے دی ہے۔ آج اپوزیشن نے سینٹ کے اجلاس میں شدید احتجاج کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل پیش کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کو گروی رکھنے کا بل ہے۔ حکومت کو اس کے اوپر شکست ہوئی ہے، کیونکہ ایجنڈے کے اوپر جب یہ بل آیا تھا اس وقت وزیر خزانہ ایوان میں موجود نہیں تھے، اور حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جب تک وزیر خزانہ ایوان میں نہیں آتے اس وقت تک بل کو پیش کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ حکومت کو شکست ہو چکی ہے، حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل پر شکست کھا چکی ہے، لیکن چیئرمین سینٹ نے 30 منٹ کے وقفے کے بعد جب دوبارہ اجلاس شروع کیا تو اس وقت حکومتی اراکین کی تعداد اور اپوزیشن اراکین کی تعداد گنتی کے مطابق برابر ہو چکی تھی، جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل منظور کرا دیا ہے۔ جی
वकास अजीम, 43 से 42 कैसे हो गए? कौन सा सेनेटर है जिसका वोट काउंट नहीं हुआ या जिसने वोट नहीं कास्ट किया? जी देखें, आज का जो ऐवान था इसमें पहली जब गिनती हुई है तो उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन की तादाद 43 रही है। इसमें जो आज़ाद अराकीन है जिनका ताल्लुक दिलावर खान ग्रुप से है, उन्होंने भी आज के इजलास में स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पर हुकूमत को सपोर्ट किया है। और जब 24 न्यूज़ से दिलावर खान से ये सवाल किया था कि आज आप स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे या फिर अपोजिशन को, तो उनका ये कहना था कि वो मुल्क और कौम के मफाद में जो होगा उसी को सपोर्ट करेंगे। और जब गिनती कराएगी तो उस वक्त भी आपने देखा कि दिलावर खान के जो ग्रुप के जो सेनेटर्स हैं वो जो है हुकूमत का साथ देते हुए नजर आए। जी वकास, जब बिल पेश किया गया तो दोनों जानिब जो तादाद थी वो 43 थी, तो उस चेयरमैन ने हुकूमत के हक में बिल पेश करने का क्यों कहा? ये क्या सूरत हाल बनी वहां पर? जी, जब पहली गिनती कराई गई है तो उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन की तादाद बराबर रही, तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट ने अपना जो वोट है वो हुकूमत के हक में कास्ट किया और स्टेट बैंक के तरमीम बिल को मंजूर कराने की रूलिंग दी। लेकिन अपोजिशन ने मुतालबा किया कि जो गिनती है वो दुरुस्त नहीं हुई, दोबारा गिनती कराई जाए ऐवान में। और चेयरमैन सेनेट ने यह कहा कि जब स्टेट बैंक के तरमीमी बिल की शेकवार मंजूरी का मरला आएगा तो उस वक्त दोबारा गिनती कराई जाएगी। अपोजिशन जो है वो शदीद शोर शराबा करती रही है, एहतजाज करती रही है, लेकिन जब शेकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो उस वक्त अपोजिशन के जो एक रुकन है वो कम हो गया। लेकिन अपोजिशन के अराकीन बार बार अब भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो गिनती है वो दुरुस्त नहीं हुई और चेयरमैन सेनेट की जानिब से हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट दी गई है। अपोजिशन इसको नहीं मानती। स्टेट बैंक के जो तरमीमी बिल है उससे मुताल्लिक अपोजिशन ने अपनी तजावीज़ भी पेश की, लेकिन आज के इजलास में अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है और स्टेट बैंक की तरमीमी बिल को मंजूर कर दिया गया है। वकास, ये जो तरमीमी बिल पेश किया गया है और मंजूर भी हो चुका है, इस बिल के हवाले से भी बताइएगा। जी, स्टेट बैंक की तरमीमी जो बिल है वो पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है और कौमी असम्बली में भी हमने देखा था कि जब हुकूमत ने ये बिल पेश किया था ज़मीनी बजट के साथ, उस वक्त अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा किया गया था। इस बिल में जो तरामीम हुकूमत की जानिब से लाई गई हैं, बुनियादी तौर पर ये बिल जो है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से है मुताल्लिक है और IMF के मुतालबे के ऊपर ये बिल जो है पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया है। क्योंकि IMF का जो इजलास था वो पहले 28 जनवरी को बुलाया गया था। उसके बाद हुकूमत ने ये दरखास्त की थी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कि चूंकि अभी सेनेट से जो स्टेट बैंक का तरमीम बिल है वो मंजूर नहीं हुआ, तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो आप 2 फरवरी को होगा। वजीर खजाना ने भी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें ये कहा था कि 2 फरवरी से पहले स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जो है वो पार्लियामेंट से मुकम्मल तौर पर जो है वो पास करा लिया जाएगा, इसको मंजूर करा लिया जाएगा, क्योंकि ये IMF की बुनियादी शर्त है। इस तरमीमी बिल के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो खुद मुख्तारी दी जा रही है और हुकूमत जो है स्टेट बैंक से किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं ले सकेगी। इस बिल के तहत हुकूमत जो है वो कमर्शियल बैंकों से अपने कर्जे लेगी, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि जब हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा नहीं लेगी तो इसकी खुद मुख्तारी जो है, मुआशी खुद मुख्तारी जो है उसको शदीद ज़र्ब पहुंचेगी। अपोजिशन के जो ने तजावीज़ दी थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को से जो है इजाज़त होनी चाहिए, हुकूमत जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा ले सके, क्योंकि माजी में भी इस हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से कर्जा लेती रही है। लेकिन वजीर खजाना ने जो बिल पेश किया है आज तरमीमी बिल, उसके तहत अब हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं लेगी। वकास अजीम, ये भी बताइएगा, जब ये इजलास शुरू हुआ तो वजीर खजाना ने बिल पेश करना था मगर वो ऐवान से ही चले गए, उसके बाद 30 मिनट का वक्फा आया और दोबारा से बिल पेश किया गया, उस वक्त क्या सूरत हाल थी वो भी बताइएगा। जी, जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त हुकूमत के जो अराकीन थे वो तादाद में कम थे, इसलिए अपोजिशन ने यह मुतालबा कर रही थी कि एजेंडे के मुताबिक जो है वो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जाए। लेकिन उस वक्त हुकूमत के अराकीन का तादाद में कम थे और खजाना जो है वो थोड़ी देर इजलास में बैठे और फिर उसके बाद चले गए। 30 मिनट के वक्फे के बाद जब इजलास शुरू हुआ तो वजीर खजाना लेट पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने पहुंचे तो उस वक्त तक हुकूमती और अपोजिशन के जो अराकीन की तादाद गिनती के मुताबिक वो बराबर हो चुकी थी और वजीर
खजाना ने बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने आज के इजलास में स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पर गिनती कराई और गिनती के बाद जो हतमी गिनती हुई है उसमें अपोजिशन के 42 अरकान ने स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पर अपनी वोटिंग की है, जबकि हुकूमत के अरकान की तादाद 43 थी, जिसके बाद स्टेट बैंक का तरमीमी बिल वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर कर दिया गया है। जी ठीक है वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि इससे पहले कि हुकूमत को सेनेट इजलास में मुश्किलात का सामना रहा, अरकान की तादाद कम होने पर हुकूमत फौरी बिल पेश करने में नाकाम रही। बिल फौरी पेश ना होने पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने चेयरमैन सेनेट से कहा कि आप बिल पेश करने के लिए रूलिंग दें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि बिल एजेंडे में शामिल है, हुकूमत पेश ही नहीं कर रही तो वो क्या कर सकते हैं। सादिक संजरानी ने पूछा, सदर मुमलिकत की मुश्तरका इजलास से तकरीर पर कोई बात करेगा, जिस पर अपोजिशन ने नो नो के नारे लगा दिए। चेयरमैन के सेनेट को इजलास 30 मिनट तक मुलतवी करना पड़ा। बात सुने, मेरी पूरी बात सुने जी। रजा साहब, आप सीनियर आदमी, सुन लें। अगर गवर्नमेंट अपनी बिजनेस ले ही नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूं जी, आप बताएं। रजा साहब, इट्स नॉट माई ड्यूटी, यू नो इट वेरी वेल। तशरीफ रखें जी, मैं बताता हूं जी, आप तशरीफ सुने, अपने लोगों को कहें बैठ जाएं, आप लोग भी तशरीफ रखेंगे। फैसल तशरीफ रखें प्लीज, अदरवाइज आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू, देन प्लीज हैव योर सीट। जी तशरीफ रखें। मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट अपना बिल अगर ले ही नहीं करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते। इसलिए गुजारिश है कि आप इस पे बात करें, जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है, पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे करें। नहीं, अगर वो एजेंडा आइटम नंबर 4 गवर्नमेंट ले ही नहीं कर रहा है, दे आर नॉट, रजा साहब बाउंड तो नहीं है ना। बात है जी, आप लोगों ने कोई पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है या नहीं? द हाउस स्टैंड्स एडजर्न फॉर 30 मिनट्स। वकास अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। वकास, हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट वाकई काफ़ी बेबस नजर आए। अपोजिशन की जानिब से बिल ना पेश करने पर एहतजाज किया गया, रूलिंग का कहा गया, मगर चेयरमैन सेनेट ने कुछ नहीं किया बल्कि इजलास से मुलतवी कर दिया। जी बिल्कुल, जब दूसरी बार गिनती हुई है तो उस वक्त अपोजिशन की जो तादाद है वो 42 के करीब रही है, क्योंकि आज के इजलास में जो अपोजिशन लीडर है यूसुफ रजा गिलानी वो आज के इजलास में मौजूद नहीं थे, और इस तरह अपोजिशन की जो तादाद है वो 42 रही है, जबकि आज के इजलास में 43 और सेनेट है वो स्टेट बैंक के तरमीमी बिल को मंजूर कराने की रूलिंग हुकूमत के खजाना की जानिब से बिल बार बार ये मुतालबा करती रही है कि बिल को जो है वो एजेंडे से हटाया जाए, क्योंकि हुकूमत पहली मरतबा एजेंडे के मुताबिक अपना जो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल है वो मंजूर कराने में कामयाब नहीं हुई, और हुकूमत ने अपने जो ताखीरी हरबे हैं वो इख्तियार किए हैं। आज के इजलास में अपोजिशन का ये कहना था कि हुकूमत को शिकस्त हुई है, इसलिए इस बिल को एजेंडे में शामिल ना किया जाए और कम से कम 1 माह तक इसको एजेंडे पर ना लाया जाए। लेकिन चेयरमैन सेनेट ने ऐसी कोई रूलिंग नहीं दी और स्टेट बैंक का तरमीमी बिल आज ऐवान से मंजूर कर लिया गया है। जी वकास अजीम, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, इस हवाले से तफसीलन आप आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट पड़े। बिल पेश करने की तहरीक में दोनों तरफ से 43 अरकान मौजूद थे। सेनेट इजलास 31 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। तो आज आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 सेनेट से मंजूर करा लिया गया है। बिल के हक में 43 और इसके मुखालफत में 42 वोट पड़े हैं। बिल पेश करने की तहरीक में दोनों तरफ से 43 अरकान मौजूद थे और अब ये इजलास 31 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसमें इस बिल की मंजूरी दी गई। सेनेट इजलास में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर फातिहा ख़्वानी कराई गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पाक फ़ौज के शहीद होने वाले जवानों के लिए फातिहा कराई। सेनेट इजलास में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर फातिहा ख़्वानी कराई गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पाक फ़ौज के शहीद होने वाले जवानों के लिए फातिहा ख़्वानी की।
कोरोना की बढ़ती शरह के बावजूद शहरियों का रवैया गैर संजीदा है। मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स में बगैर मास्क लोगों का रश है। समाजी फासले को भी यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मायदा वहीद से तफसीलात जानते हैं। मायदा, बताइएगा। इस टाइम मैं नौलखा बाजार, लंडा बाजार के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर SOPs की मुकम्मल तौर पर खुल्ला खिलाफवर्जी की जा रही है और धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। कोविड की शरह में 20.6% जो है वो इजाफा देखने में नजर आ रहा है। और यकम में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद शॉपिंग करने के लिए तो आई हुई है, लेकिन किसी भी एक बंदे के फेस पे जो है वो मास्क नहीं लगा हुआ। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी सख्ती से अमल दरामद नहीं करवा रहे कि जब वो शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनवाएं, कि यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जो है वो लाजमी मास्क लगा कर आएँ। इसी के साथ जो है हुकूमत ने बार बार यही कहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाते हुए जो है SOPs का ख्याल रखते हुए जो है लोग शहरी बाहर सफ़र करें, जिसकी वजह से कोविड में जो है वो उसकी शरह में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लोग अगर इसी तरह से शहरी अमल दरामद नहीं करेंगे SOPs पर तो शरह जो है वो मज़ीद बढ़ती हुई देखने में नज़र आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि लगता है बल्दियाती इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके साथियों ने जो बोया अब काटने का वक्त आ गया। इमरान खान का ख्याल है कि वो फिर कंटेनर पर चढ़ेंगे, लेकिन वो अपनी बस मिस कर चुके हैं। इमरान खान के ज़मीन पर आने का वक्त हो चुका है। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च ज़ाया नहीं होता, कुछ ना कुछ निकलता है। उम्मीद करते हैं ताकतवर हल्के न्यूट्रल रहेंगे। इमरान साहब को स्मेल आ रही है, जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ उन्होंने बोया और उनके साथियों ने, वो काटने का वक्त उनका आ गया है। तो जब काटने का वक्त आ जाता है तो फिर आदमी इस तरह की बहकी बातें करता है। उनका ये ख्याल है कि अगर वो फारिग हुए तो लोगों का हजूम उनके साथ आएगा या वो फिर कंटेनर पे चढ़ेंगे। वो अपनी बस मिस कर चुके हैं, उन्हें वापस ही लौटना है और उन्हें ज़मीन पर ही आना है। आसमान से हर एक को ज़मीन पे आना होता है, उनके भी ज़मीन पे आने का वक्त हो गया है। हर लॉन्ग मार्च से कुछ ना कुछ निकलता है, कोई लॉन्ग मार्च कभी ज़ाया नहीं होता। जबकि पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ को ज़्यादा मौसर किरदार अदा करना चाहिए ताकि निजात मिले लोगों को इस नहुसत से जो कौम पे मुसल्लत की गई है कि जो ताकतवर हल्के हैं अब वो न्यूट्रल रहेंगे और माजी की तरह कोई जानिबदार अदा नहीं करेंगे। सिंध के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला काजी शाहिद परवेज़ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई। काजी शाहिद परवेज़ के रिटायर होने पर नए सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आज़ाद नोहरियों से तफसीलात जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काजी शाहिद परवेज़ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। उनको रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। काजी शाहिद परवेज़ महकमा दाखिला के अलावा मुख्तलिफ महकमों में सेक्रेटरीज के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। वो उनका ताल्लुक थरपार करके तहसील डिप्लो से था। इस वक्त जो है नए सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद मंगने जिन्हें जो है सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर चार्ज संभाल लिया, वो दफ्तर पहुंचे। इस वक्त उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिए हैं। सईद अहमद मंगने जो भी महकमा आपाशी, ज़राअत, सेहत समेत दीगर महकमे में सेक्रेटरी के अहदे पर भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।